محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کے باعث اسکولوں میں کورونا قواعد پر عمل آوری کرنے کی عہدیداران نے دی ہدایت۔ برقی کے شعبے پر عدالتی تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت تیار ہے۔ تلنگانہ اسمبلی جاری اجلاس میں سابقہ وزیر جگدیش ریڈی کی جانب سے کیے گئے چیلنج کو سی ایم ریونت ریڈی نے کیا قبول۔ ضلع میں کسانوں کے لیے درکار یوریا و کھاد کے ذخائر وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ کھاد کی قلت نہ ہونے کے لیے بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی نے عہدیداران کو اقدامات کرنے کی تاکید۔ ریاست میں کووڈ کیسز کا اضافہ ہونے کی وجہ سے ہاسٹل طلباء کو بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کا ڈپٹی چیئرمین ڈی وٹھل راؤ نے کیا اظہار۔ شاہنظام آباد بین الاقوامی باکسر حسام الدین ارجنا ایوارڈ کے لیے منتخب۔ تلنگانہ کو قومی ہلدی بورڈ سامکا سارکا سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث ایم پی ڈی آر وی نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی کو کیا اظہار تشکر۔ بی جے پی حکومت کی پالیسی کے خلاف کل ریاستی سطح پر احتجاجی دھرنے کا انعقاد عمل میں لانے کا ٹی پی سی سی ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڈ نے کیا اعلان۔ کرناٹک کے بیجاپور سے واپسی کے دوران ضلع صدر حافظ علی خان کی کار کا ہوا ایکسیڈنٹ، زخمی افراد گلبرگہ سرکاری دواخانے میں شریک۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ شاہنظام آباد بین الاقوامی باکسر حسام الدین ارجنا ایوارڈ کے لیے منتخب۔ شاہنظام آباد کے علاقے پھولان کے رہنے والے عالمی شہرت یافتہ باکسر حسام الدین، جنہوں نے مسلسل کئی سالوں سے سخت محنت کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے مختلف مقابلوں میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کمپٹیشن میں ہندوستان کے لیے میڈلز حاصل کیے اور شاہنظام آباد، ریاست تلنگانہ اور ہندوستان کا نام روشن کیا۔ انہی خدمات کے مدنظر مرکزی حکومت کی جانب سے حال ہی میں انہیں ارجنا ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور انہیں اس ایوارڈ کے لیے منتخب کرتے ہوئے ہندوستان کے معزز اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، جس پر ان کے افراد خاندان اور شاہنظام آباد کے عوام میں خوشی و مسرت پائی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے بیجاپور سے واپسی کے دوران ضلع صدر حافظ علی خان کی کار کا حادثہ، زخمی افراد گلبرگہ سرکاری دواخانے میں شریک۔ نظام آباد جمعیت العلماء ضلع صدر حافظ علی خان کے ہمراہ شہر کے چند علماء و مفتیان اعظام ایک مسئلے پر کرناٹک کے بیجاپور گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے دوران ان کی کار کا حادثہ پیش آیا۔ اللہ کے فضل سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور کار میں موجود افراد کو معمولی سی چوٹیں آئیں، جس کے بعد ان کو گلبرگہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں حافظ علی خان صاحب کے ہمراہ مفتی ابراہیم خان حسامی، حافظ اشرف علی، مفتی طلحہ، مولانا ہاشم بیگ، حافظ علی رحمانی، مولانا عظمت سعید و دیگر احباب شامل تھے۔ مکاتب دینیہ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ نظام آباد تلنگانہ۔
मौजूदा माहौल में दीनी मदारिस की ज़रूरत, अहमियत व इफादियत के बावजूद मुसलमान बच्चों के ईमान व क़ायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिद मोहल्ला मोहल्ला मकातिब दीनिया व कुरानिया क़ायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात व मसाजिद नेज़ मंडलों में चल रहे दीनी मकातिब का सर्वे शुरू किया गया ताकि तालीमी कैफियत का जायज़ा लिया जाए और मुकामी माहौल को देखा जाए तो अंदाज़ा हुआ कि आम मुसलमानों में दीनी तालीमी शौर बेदारी अज़ा ज़रूरी है। मस्जिद के इतराफ़ व इकनाफ़ में हज़ारों मुस्लिम मकानात हैं, मगर मकतब पढ़ने वाले तुलबा व तलेबात की तादाद बहुत कम है, जो हम उलमा व आइमा के लिए काबिल फ़िक्र है। राक़िमुल हरब बज़ात खुद शहर के कई एक मकातिब का निजी दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ मसाजिद में और मसाजिद के खरब व जवार में नौजवान उलमा कराम काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं, अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। शहरी सतह पर मौलाना अबरार क़ासमी, मुफ्ती सोहेल क़ासमी, हाफिज़ फुरक़ान, हाफिज़ राशिद, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, हाफिज़ सैयद मुस्तफ़ा, हाफिज़ अब्दुल अली वो दीगर उलमा कराम अपनी ज़ाती फ़िक्रों के साथ इस काम में लगे हुए हैं। मस्जिद मोहम्मदिया व मस्जिद उमर व मस्जिद इस्लामिया के अलावा दीगर मकातिब में तुलबा ने उम्दा तालीमी मुज़ाहरा किया, मगर फिर भी इस काम को मज़ीद मुस्तहकम करने की अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नई तालीमी पॉलिसी के पेश नज़र अगर हमारी नई नस्लों को दीन व ईमान की बातें, कुरान व हदीस के अहकामात, बल्कि इनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का कोई काम हो सकता है तो वो इन्हीं मकातिब के ज़रिए मुमकिन है, वरना किसी स्कूल की जानिब से अब हमारी औलाद के ईमान को बचाने, अल्लाह व रसूल की बातों से इनको वाकिफ कराने का कोई इंतज़ाम मुमकिन नहीं है। लिहाजा उम्मत मुसलिमा से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए इन मकातिब और उलमा कराम की मेहनतों से फ़ायदा उठाया जाए। मसाजिद के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिदों के आइमा कराम को खातिर ख्वाह मुशायरा तय करके मसाई या सबाई जुज़ वक्ती मकातिब को यकीनी बनाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद इस्लामिया, मस्जिद उमर के सदर व मोतमिदीन और यहाँ मेहनत करने वाले उलमा व आइमा को, जिन्होंने इस फिक्र को सामने रखते हुए मकातिब दीनिया को चला रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में तजवीद व क़वायद के माहिर असातिज़ा हाफिज़ फ़याज़ मखदूम और इंतज़ामी सलाहियत के मालिक मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी व मौलाना अरशद अली क़ासमी की निगरानी में शहर की हर मस्जिद को पहुँच कर इस सिलसिले में अकाबिर उलमा कराम की हिदायत के मुताबिक बेहतर से बेहतर मकातिब को कायम करने और चलाने का इंतज़ाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्की व रियासती सतह के तजुर्बेकार अकाबिर उलमा आज इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मदारिस से ज़्यादा तवज्जो मकातिब पर दी जाए, इसलिए कि मदारिस में एक महदूद तादाद मुसलमान बच्चों की होती है और इससे कहीं ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ दुनियावी असरी उलूम हासिल करने में लगे हुए हैं। हमें इनके दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करना ज़रूरी है। जिले में किसानों के लिए दरकार खाद के ज़ख़ीरा महफूज होने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। ज़िले निज़ामाबाद में खाद की कमी न होने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास किसानों के लिए दरकार खाद का ज़ख़ीरा दस्तयाब में रखने के लिए सोसाइटी सेक्रेटरियों को सख्ती के साथ ताकीद करें और खाद के ज़ख़ीरे के मामले में या किसानों को खाद की फ़राहमी अमल में लाने वाले मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही सरजद होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज़िले अहदेदारान को बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से ताकीद की गई। ज़िले में कहीं पर भी खाद की खलत हो तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी व ज़िले अहदेदारान जिम्मेदार होंगे। लिहाजा अहदेदारान खाद की खलत ना होने के ताल्लुक से खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की ताकीद की और इसी तरह से किसानों के लिए दरकार खाद का ज़ख़ीरा हमारे पास महफूज करने की सुदर्शन रेड्डी ने किसानों को ताकीद की। तबलीगी जमात के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान रचना रेड्डी की ज़हरअफ़शानी। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान रचना रेड्डी ने तबलीगी जमात के सरोज़ा इज्तिमा के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की इजराई पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रचना रेड्डी ने तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि ये जमात दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करने वाली जमात है और इसने ही साल 2020 में दिल्ली में कोरोना वायरस की वबा को मुल्क में फैलाया था। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस मुल्क में तबलीगी जमात पर पाबंदी है। इसी जमात को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इज्तिमा के इनेकाद के लिए फंड जारी किए हैं, जो विकाराबाद जिले के परगी में आइंदा माह जनवरी 6 से 8 तक मुनक़िद होने वाला है। रचना रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तबलीगी जमात को जारी करदा फंड्स वापस ले ले। జమాత్ భారతదేశంలో ఒక 100 ఏళ్ల కింద స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఉన్నలేని దేశాలలో మొత్తము వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినరు అన్నమాట. కానీ సౌదీ అరేబియా ద సీట్ ఆఫ్ ఇస్లాం జన్మస్థలం ఇదే తబ్లీగీ జమాత్ ని బ్యాన్ చేసిండ్రు. ఎందుకు? వీళ్ళు ఇస్లాం గురించి నేర్పడము లేకపోతే ఇస్లాం నుంచి దూరం వెళ్ళిన వాళ్ళను వాపస్ తీసుకురావడమే కాకుండా 2 కారణాలు. కన్వర్జన్ అంటే ఇల్లీగల్
illegal forceful conversion, and most importantly తబ్లీగీ జమాత్ అనేది టెర్రరిజం కి కూడా ఇనిషియేషన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, టెర్రరిజం ని కూడా ప్రోద్బలిస్తుంది, టెర్రరిజం ని కూడా ఇనిషియేషన్ చేస్తుంది. వాళ్ళకు ప్రాపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నది. అందుకనే ఇస్లాం జన్మస్థలం అయినప్పటికీ తబ్లీగీ జమాత్ చెప్పుకోవడానికి ఇస్లాం మతం గురించి ప్రచారం చేయటమైనా, లేకపోతే ఇస్లాం నుంచి దూరం వెళ్ళిన వాళ్ళను ఇస్లాం కన్జర్వేటివ్ ఇస్లాం కి వాపస్ తీసుకురావడమైనా, వీళ్ళ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। कागज नगर में आज ऑटो यूनियन की तरफ से रास्ता रोको किया गया। कोमरम में आसिफाबाद जिले के कागज नगर मरकज में NTR चौरास्ता ऑटो यूनियन के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ऑटो वालों ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र को मनसूख किया जाए। ऑटो ड्राइवरों ने गुस्सा जाहिर किया कि खवातीन के मुफ्त सफ़र से वो अपनी मुलाजिमतें खो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत रोज़गार फ्राहम करे और इनकी मदद करे। हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है। మహాలక్ష్మి పథకం వల్ల మహిళలకు ఫ్రీ సర్వీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మా ఆటో డ్రైవర్లు దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాము. ప్రతిరోజు ఒక 20 బస్ స్టాండ్ ముందట ఒక 24 గంటలు ఖాళీగానే ఉంటున్నాము. అసలు మా బండ్లలో ఎవరు మహిళలే ఎక్కట్లేదు, అసలు పబ్లిక్ ఎవరు రావట్లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా ఘోరమైన గణనీయమైన మనం ఇబ్బందులకు ఎదుర్కొంటున్నాము. మన బండ్లలో ఫైనాన్స్ తీసుకొని ఫైనాన్స్ కూడా కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. పిల్లల చదువులు కానీ, రూమ్ రెంట్లు కానీ, కరెంట్ బిల్ కానీ ఏది కూడా కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. ఫైనాన్స్ కూడా ప్రతి ఒక్క ఆటో కూడా ఫైనాన్స్ ఉంది. ఆ ఫైనాన్స్ కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. దయచేసి ప్రభుత్వము మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మేము रियासत में कोविड केसेस दर्ज होने की वजह से हॉस्पिटल के तलबा को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी अमल में लाने का ZP चेयरमैन डी विठल राव ने किया इजहार। जिले परिषद में समाजी बहबूद इजलास कमेटी चेयरपर्सन दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया की सदारत में मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एक सफेशियो के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव, CEO गोविंद, जिले SC/ST BC व माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारान ने शिरकत की। बातज़त दोपहर के औकात कार में मालियती मनसूबाबंदी इजलास ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनाकिद किया गया। इस इजलास में CEO गोविंद, ZPTC मेम्बरान मोहसरा भास्कर रेड्डी, आर्मी मेट्टू संतोष, पंचायत राज डिपार्टमेंट SE प्रभाकर, EES भावना शंकर, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट SE राजेंद्र कुमार, EE राकेश, RNB इरिगेशन अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत में कोविड के केसेस का इंदराज होने की वजह से हॉस्पिटल में तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम करें और हॉस्टलों के अहाते में साफ सफाई को बरकरार रखते हुए बैतुल खला को साफ रखें और पीने के पानी को आलूदा ना होने दे और सैनिटाइज हमेशा दस्तियाब रखें और तलबा को मेन्यू के मुताबिक मियारी ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाई जाए और सर्दी शदीद होने के बायस कंबल की कमी ना होने दे और मच्छरदान का क़याम अमल में लाया जाए और कहीं पर भी तलबा को मसाइल का सामना करना पड़े तो इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान ज़िम्मेदार होने का इजहार किया। लायंस क्लब गरीब व पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने का इंटरनेशनल लायंस क्लब सदर ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोटापल्ली वीराजू शेषा रत्नम मेमोरियल ओल्ड एज होम का इंटरनेशनल लायंस क्लब सदर लियन ब्रियन ई सिहान ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि लायंस क्लब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात अंजाम देते हुए अब तक कुदरती आफात, जलजला, आई कैंप और मुफ्त सर्जरी जैसे खिदमात अंजाम देने में इनका कोई सानी नहीं और दही इलाकों में ओल्ड एज होम की तामीर काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि अगर इनसे इस्तिफादा किया जाए तो लायंस क्लब को मज़ीद मराहत मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ बैनुल अक़वामी इंडस्ट्री लायन बाबू राव, बसवेश्वर राव, के किशोर, श्रीनिवास राव, गंगा रेड्डी, कड़म प्रकाश राव, कृष्णा राव, मनोज कुमार, जिले के ट्रैफिक नाव से ताल्लुक़ रखने वाले लायंस क्लब के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्लियामेंट में कांग्रेस MP की जानिब से हिंदुस्तान के नायब सदर व राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर के खिलाफ किए गए अहानत आमेज रिमार्क्स पर एहतजाज किया गया। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़िअ तेलंगाना चौरास्ते पर बीजेपी मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी के ज़ेर एहतमाम बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस MP की जानिब से हिंदुस्तान के नायब सदर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर के खिलाफ किए गए अहानत आमेज रिमार्क्स
पर एहतिजाजी धरना मुनाकिद करने का इजहार करते हुए इन्होंने कांग्रेस के कायद राहुल गांधी हिंदुस्तान के नायब सदर से फौरी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लिम्बाद्री, डॉक्टर श्रीनु बाबूराव, गोपी संतोष, टी श्रीनिवास, बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल में वाक़ बोरगम प्राइमरी स्कूल में मुकामी अवाम को विकसित भारत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। रेंजल मंडल में वाक़ बोरगम प्राइमरी स्कूल में विकसित भारत प्रोग्राम को होद्देदारान ने इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZPTC एम विजय ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए मरकजी हुकूमत के तहत मुद्रा योजना स्कीम के जरिए ठेला बंडियों के लिए माली इमदाद दी जा रही है। स्कीम और इसी तरह से उज्ज्वला योजना के तहत खवातीन को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर किसी को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ना हो तो वो विकसित भारत में नाम का इंदराज करवाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPDO शंकर, MPO गौस मोइनुद्दीन, SBI ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर मल्लिकार्जुन, तिब्बी अमला, सरपंच पी वानी, नायब सरपंच फेरोज, MPTC व दीगर ने शिरकत की। किसानों के लिए दरकार यूरिया व खाद डिस्ट्रिक्ट मार्केट में वाफिर मकदार में दस्तयाब है। जिले के तमाम किसान भाइयों को मतला किया जाता है कि वो वैसंगी में किसानों के लिए दरकार यूरिया और दीगर कॉम्प्लेक्स की खाद डिस्ट्रिक्ट मार्केट में वाफिर मकदार में दस्तयाब है, लिहाजा किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिले में वाक़ तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में यूरिया और कॉम्प्लेक्स खाद के स्टॉक की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सेक्रेटरियों को हिदायत दी गई है और किसानों को खाद की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट के अकाउंट में जमा कराए और किसानों को खाद को लातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने के लिए तमाम सोसाइटी के सेक्रेटरियों को अहकाम जारी किए गए हैं। और अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किसानों को खाद की खिलत है तो उस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अपने अपने ज़रूरी यूरिया और दीगर कॉम्प्लेक्स खाद को रकूमात की अदायगी अमल में लाते हुए हासिल करने के ताल्लुक से अपील की गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों को MRP से ज़ायद रकम पर खाद की फ़रोख्त लाने के ताल्लुक से इत्तला हासिल होने की सूरत में इस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करने का इजहार किया। तेलंगाना को कौमी हल्दी बोर्ड सामका सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस MP DRV ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना को कौमी हल्दी बोर्ड सामका सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस निज़ामाबाद MP धर्मापुरी अरविंद ने पार्लियामेंट सेशन के तहत मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। कागज नगर में खौफनाक सड़क हादसा, बूढ़ी औरत को टक्कर देकर बाइक सवार हुआ फरार। कागज नगर तिरंदाज टाकिस के करीब एक हादसा पेश आया। एक पैदल चलने वाले बूढ़े शख्स को तेज रफ्तार स्कूटी से टक्कर मारकर स्कूटी वाला शख्स फरार हो गया और बूढ़े आदमी की टांग टूट गई। मुकामी लोगों ने देखकर ऑटो में डालकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। कागज नगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने मंचियाल के बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुकामी अवाम और पुलिस इस स्कूटी वाले शख्स की तलाश जारी। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा होने के बायस स्कूलों में कोरोना कवायद पर अमलावरी करने का महकमे सेहत ने किया इजहार। तेलंगाना में आज 6 केसेस का इंदराज किया गया है और ये तमाम केसेस हैदराबाद में होने का महकमे सेहत की जानिब से इंकशाफ किया गया, जिसके तहत आज एक शख्स वायरस से सेहतियाब हुआ है। गुज़िश्ता 4 अफराद मुतासर हुए थे। फिलहाल 14 अशखास ज़ेर इलाज आइसोलेशन में मौजूद है, लिहाजा अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाहर निकलते वक्त यकीनी तौर पर मास्क लगाने की ताकीद की गई। रियासती हुकूमत बरखी शोबे के ताल्लुक से अदालती तहक़ीक़ात करने के लिए तैयार रहने का तेलंगाना असम्बली में मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना असम्बली में जारी इजलास से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यादाद्री प्रोजेक्ट समेत छत्तीसगढ़ के 7 बरखी का मुआहदा व बदादरी प्रोजेक्ट में फरसुदा सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अदालती तहक़ीक़ात करने के ताल्लुक से अहकाम जारी किए और कहा कि छत्तीसगढ़ में बरखी से मुआहदा नाक़िज़ है और मुआहदे के पीछे होने वाली वजूहात को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए और इस तरह से टेंडर के बगैर किए गए मुआहदे के ताल्लुक से इस वक्त भी जदोजहद करने की वजह से मार्शल के जरिए हमें इजलास से बाहर करने का इजहार किया। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ कल रियासती सतह पर एहतिजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाने का TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार।
पार्लियामेंट में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले एमपीज़ को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करने के खिलाफ कल रियासती सतह पर एहतजाजी धरना मुनक़िद करने के ताल्लुक से टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने इजहार करते हुए बताया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के ताल्लुक से लोकसभा व राज्यसभा में सवाल करने वाले एमपीज़ को मुअत्तल करना सरासर इनके साथ जुल्म होने का इजहार किया। नए फौजदारी क़वानीन खुद मुजरिमाना बैरिस्टर अवैसी शहरी को ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के जराइम को जायज़ बनाना मकसद, मुसलमान, दलित और आदिवासियों की ज़िंदगी सजा बन गई। लोकसभा में सदर मजलिस का खिताब। 2002 said Prime Minister, LOP, Leader of Opposition Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chairman should decide who should be made CEC and ECs. Law Commission Report 255 headed by Justice A.P. Shah said that the appointment of all ECs and including CEC should be made by President with a 3-member collegium or selection committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition, Lok Sabha and the Chief Justice of India. What did Baba Saheb Ambedkar said, sir? I mean, you don't have any regard for Baba Saheb Ambedkar. The Prime Minister and all of you say, Baba Saheb Ambedkar, this, that. But what about you? What did Baba Saheb said? Baba Saheb Ambedkar said on June 15, 1949, sir. I am reading only few lines of what great Ambedkar had said, who I feel was the tallest leader India has ever produced. He was more taller than Mahatma Gandhi also. What Baba Saheb Ambedkar said, in every early stage of the proceeding of Constituent Assembly, a committee was appointed to deal with what are called fundamental rights. The committee made a report. The committee made a report that it should be recognized that independent elections and the avoidance of any interference by the executive in the election to the legislature should be regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing fundamental rights. When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing fundamental rights. Baba Sahib goes on and says, but the House affirmed without any kind of dissent that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be free from any kind of interference from the executive of the day. You are going against what our Constituent Assembly, Dr. Baba Saheb Ambedkar said. And sir, I am concluding, sir. Section 10 of the bill, sir. Section 10 of the bill provides the salaries of the EC and the CEC shall be equivalent to that of Cabinet Secretary. Why are you degrading it? Earlier the salaries were equivalent to the Supreme Court judge. Why is the government doing it, sir? To control them. No, please. And I am concluding, sir. Both important, sir. Because the salaries and benefits available to judge of Supreme Court can only be altered by Parliament. Whereas if the benefits are accruing to a Cabinet Secretary can be decided by the Executive upon the recommendation of Pay and Commission. So, sir, this is very important that the Election Commission funds are not being drawn from the Consolidated Fund of India. Can the government change it? And that is why, sir, I feel that this will create a trust deficit in the eyes of people for CEC and the ECs. This will be wrong for our democracy, because if an impartial and non-partisan body is not there, then the legitimacy of our democracy comes into question, sir. That is why I stand to oppose the bill. I do not know whether the Honourable Minister has authority to accept others. And thank you, sir. इख्तिताम तक हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा होने के बायस स्कूलों में कोरोना कवायद पर अमलावरी करने की ओहदेदार ने दी हिदायत। बरखी के शोबे पर अदालती तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत तैयार है। तेलंगाना असम्बली जारी इजलास में साबिका वजीर जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए चैलेंज को सीएम रेवंत रेड्डी ने किया कबूल। जिले में किसानों के लिए दरकार यूरिया व खाद के ज़खायर वाफिर मकदार में दस्तियाब है। खाद की किल्लत न होने के लिए बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारान को इक़दाम करने की ताकीद। रियासत में कोविड केसेस का इजाफा होने की वजह से हॉस्टल तलबा को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का सेक्रेटरी चेयरमैन टी विठल राव ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद बैनुल अक़वामी बॉक्सर हुसामुद्दीन अर्जुना अवार्ड के लिए मुंतखब।
تلنگانہ کو قومی ہلدی بورڈ سامکت سارکا سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث MPDRV نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی کو کیا اظہار تشکر۔ BJP حکومت کی پالیسی کے خلاف کل ریاستی سطح پر احتجاجی دھرنے کا انعقاد عمل میں لانے کا TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڈ نے کیا اعلان۔ کرناٹک کے بیجاپور سے واپسی کے دوران ضلع صدر حافظ علی خان کی کار کا ہوا ایکسیڈنٹ، زخمی افراد گلبرگہ سرکاری دواخانے میں شریک۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔